Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the regulation of the gene expression. We have said that gene expression is very important in both prokaryotes and eukaryotes because gene expression would result into a synthesis of particular protein, polypeptide, enzyme or any phenotypic character in the organism. And therefore, this gene expression should be regulated. It should be regulated because all the products of the genes are not required at the same time. All these products are not required at the same time. For example, an enzyme which is required for flowering in plants is not the same which would be required for the development of the fruit. And therefore, at the time of flowering, only the enzyme for flowering should be produced. And at the time of fruit formation, only the enzyme for fruit formation should be produced. And therefore, there should be some sort of switch on and switch off type of mechanism which will be regulating the synthesis of the mRNA, or you can say transcription to form mRNA. So here, we are going to talk about the operon, which is actually a part of the genetic material only. Operon जो होता है वो DNA का ही part है, but it is a regulated unit. A regulated unit means the one which will be controlling the activity of the whole gene, whether the transcription has to occur or whether the transcription has to stop. So for the first time, this operon was studied by Jacob and Monod. There was the structure operon that was studied by, it was studied or you can say found by Jacob and Monod. For the first time it was discovered by Jacob and Monod as a regulatory unit in genetic material. So in the genetic material, पूरे जो genetic material DNA है उसमें एक छोटा सा रेगुलेटेड यूनिट होगा जिसे कहा जाता है ओपेरॉन. ये कैसा रेगुलेटेड यूनिट है इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, दैट हाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रेगुलेटेड यूनिट. पर रेगुलेटेड यूनिट का मीनिंग ये होता है दैट इट कैन बी टर्न्ड ऑन एंड इट कैन बी टर्न्ड ऑफ एंड देयरफॉर द जीन एक्सप्रेशन कैन बी टर्न्ड ऑन and the gene expression can be turned off. Such a unit is called operon. So operon is a part of genetic material. Operon is a part of genetic material that is a regulated gene unit which consists of one or more structural gene. Along with structural gene there is operator, promoter, इंड्यूसर एंड रिप्रेसर. राइट. ऑपरेटर मतलब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन जो है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ जीन. वो एक जीन ही है, राइट. वहां पे मल्टीपल जीन्स है. मल्टीपल जीन्स जो है वो कलेक्टिवली एक यूनिट की तरह काम करते हैं. तो हमने कहा कि मल्टीपल जीन्स हैं जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं. तो वो मल्टीपल जीन्स कौन से होंगे? दोज मल्टीपल जीन्स आर गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब जिसका ट्रांसक्रिप्शन हमें करवाना है टू गेट अवर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के लिए जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन हमें चाहिए उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन. साथ साथ में है ऑपरेटर, फिर है प्रमोटर, देयर इज इंड्यूसर एंड देयर इज रिप्रेसर. तो इतने जब जीन्स होते हैं तब जाके उनको मिला के एक ओपेरॉन बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो
स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर है और प्रमोटर है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि एक रेगुलेटरी जीन होता है, राइट। देयर इज अ रेगुलेटरी जीन विच विल बी इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चरल, ऑपरेटर एंड प्रमोटर जीन्स। तो ये अब कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब ओपेरॉन को समझने के लिए जैकब और मोनोड ने सबसे पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने डिस्कवर किया था दैट वाज ऑफ द लैक ओपेरॉन, जिसे कहते हैं लैक्टोज ओपेरॉन। ओके, तो लैक्टोज ओपेरॉन जो है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए बना गया ओपेरॉन है। यूजुअली प्रोकैरियोट्स में ये काफी फंक्शनल रहता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैक्टोज ओपेरॉन। अब लैक्टोज ओपेरॉन जो है, दिस ओपेरॉन विल बी हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स। हम लैक्टोज ओपेरॉन की बात कर रहे हैं, तो लैक्टोज ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर, ये सारी साइट्स होने वाली है, ठीक है। तो अब ये कैसे लोकेटेड होती है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कंसिडर दिस एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। कंसिडर दिस एज अ सेगमेंट, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरएनए ओवर हियर, दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड। So in this DNA strand, there will be presence of certain genes. The first one is known as gene I, right? इसे कहा जाता है, I'm writing it over here, regulatory gene। फिर आ जाता है promoter, operator. This is known as the promoter site. This is known as the operator site. Okay, this will be Z, Y and A. These are the structural genes. These are the structural gene. इतने पूरे यूनिट को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज एन ओपेरॉन। ओपेरॉन जो है वो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का ही पार्ट है, राइट। जैसे हम कहते हैं कि डीएनए का एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, तो ओपेरॉन वो है जिसमें एक नहीं बल्कि कई सारे जीन्स हैं। कौन से जीन्स हैं? तो वो जीन्स है रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन एन ओपेरॉन और ये एक साथ मिलके एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करते हैं एंड देयरफॉर दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन ओपेरॉन, राइट। ओपेरॉन और सिस्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है? सिस्ट्रॉन मतलब एक सिंगल जीन होता है जिससे पॉलीपेप्टाइड बनेगा, उसे भी हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। पर जब हम ऐसे कई सारे जीन्स की बात करते हैं जो साथ में मिलके काम करते हैं तो उसे हम ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक पूरा रेगुलेटरी यूनिट। ये रेगुलेटरी यूनिट में रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, Z, Y, A ऐसे 3 जीन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये 3 जीन्स की जिन्हें कहा गया है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन इज दैट जीन विच हैज टू बी ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म द mRNA, right? It has to be transcribed to form mRNA। मतलब हमें किसका ट्रांसक्रिप्शन चाहिए? रिमेंबर दिस होल इज डीएनए एंड नॉट द आरएनए। ये पूरा डीएनए है, ठीक है। हमें स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, Z, Y और A। ये 3 जीन्स, और ये कंडीशन हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A का ट्रांसक्रिप्शन चाहिए हमें एंड इट शुड बी ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म द mRNA। Why mRNA? This mRNA is
to be transported to the cytoplasm for protein synthesis, or you can say enzyme synthesis over the ribosomes, right? हमें क्या चाहिए? We want the product of the structural gene. Structural gene मतलब वैसे जीन्स जिनकी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए. प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्रोडक्ट्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? तो जब डीएनए से बनेगा आरएनए, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. तो जेड, वाई और ए का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए ताकि वो जो एमआरएनए बने वो एमआरएनए को हम सेंड कर सके टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन और यू कैन से एंजाइम सिंथेसिस ओवर द राइबोसोम्स. पर उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू द वर्ड्स जेड, वाई एंड ए डिनोट, राइट? तो जेड जो है, जेड, दिस इज फॉर जब जेड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से जब वो प्रोटीन बनेगा तो हम कह सकते हैं कि दिस जेड इट कोड्स फॉर द एंजाइम, कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा galactosidase. It codes for the enzyme beta galactosidase, which is used for hydrolyzing lactose. लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए जो जीन की जरूरत है, जीन प्रोडक्ट की जरूरत है, वो जीन है लैक-जेड. इसे कहा जाता है लैक-जेड जीन. LAC-Z gene means this is the gene which when transcribes to mRNA and results into protein synthesis, which protein it will make? It will make beta galactosidase. और यही वो एंजाइम है जो हमें चाहिए किसके लिए? लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए. ठीक है. सेकेंड वन इज LAC-Y. The LAC-Y is for, it codes for the enzyme permease. It codes for the enzyme permease, and permease allows the entry of lactose into cell. सेल में लैक्टोज को अंदर आने देना, वो काम किसका है? परमीएज का. और परमीएज कब सिंथेसाइज होगा? ओनली व्हेन LAC-Y गेट्स ट्रांसक्राइब. LAC-Z अगर ट्रांसक्राइब होगा तो हमें मिलेगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. अब वो तो चाहिए ही. क्यों? क्योंकि हमें लैक्टोज को ब्रेक करना है. Y कब ट्रांसक्राइब होगा? तो Y ट्रांसक्राइब होगा तो मिलेगा परमीएज. परमीएज मिलेगा तो ही लैक्टोज सेल के अंदर एंटर हो पाएगा. एंड LAC-A, that is for trans-acetylase that metabolizes the thiogalactoside, which is toxic and enters along with लैक्टोज. Y जो है वो परमीएज है. ठीक है. परमीएज के लिए ट्रांसक्राइब करेगा और Y की वजह से ही परमीएज बनता है जो लैक्टोज को अंदर सेल में आने देता है. पर कई बार क्या होता है कि लैक्टोज के साथ साथ एक टॉक्सिक प्रोडक्ट भी एंटर हो जाती है जिसे कहते हैं थायोगैलेक्टोसाइड. अब ये थायोगैलेक्टोसाइड की सेल को जरूरत नहीं है तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करना पड़ेगा, एंड दैट फंक्शन इज विद द ट्रांसएसिटाइलेज. तो जब ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ही ये एंजाइम्स मिलेंगे. कौन से? बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड थायोगैलेक्टोसाइड. राइट. तो यहाँ पे सॉरी ट्रांसएसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम्स तो ही हमें मिल पाएंगे अगर Z, Y और A का ट्रांसक्रिप्शन होगा.
अब ZY और A का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज जो है इट शुड एक्ट प्रॉपरली ऑन द स्ट्रक्चरल जीन्स सो दैट देयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन, राइट। लैक ओपेरॉन जो है वो एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल का मतलब कि जब भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ये तीनों एंजाइम्स की जरूरत है। In order to metabolize the lactose, all three enzymes are required, and all three enzymes will be transcribed, right, to form the mRNA. Now let us understand what is the role of site O, site P, and site I. These are very, very important things, right? Patiently you will have to understand it one by one so that you can understand the whole concept about the operon. लैक्टोज ओपेरॉन लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए बना गया है, जो होता है प्रोकैरियोट्स के डीएनए में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का ओपेरॉन होता है, बहुत से ओपेरॉन्स होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, एरेबिनोज ओपेरॉन, पर ये सारे ओपेरॉन हमारे सिलेबस में नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली लैक्टोज ओपेरॉन। एक ओपेरॉन में एक जीन नहीं होता, एक ओपेरॉन में कई सारे जीन्स होते हैं जो मिलके एक रेगुलेटर यूनिट की तरह काम करते हैं। उनमें से हमने अभी सिर्फ एक ही तरह के जीन्स की बात की है और वो है स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक्टोज ओपेरॉन में कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं? Z, Y और A। Z का ट्रांसक्रिप्शन होने पर जो mRNA बनेगा वो mRNA से कौन सा प्रोटीन बनेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y के ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा और वो mRNA कौन सा प्रोटीन बनाएगा? परमिएज। A के ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा और वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा? ट्रांसएसिटाइलेज। सो इन दिस वे हमने तीन स्ट्रक्चरल जीन्स की बात की। अब हम बात करते हैं अबाउट ऑपरेटर, प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, दैट इज जीन I. So let us now understand the role of the other genes, that is स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में हमने बात की कि स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं उनसे जो mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद और mRNA से जो प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन्स होंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। और ये तीनों प्रोटीन्स की जरूरत है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। एक लैक्टोज को सेल के अंदर पहुंचाता है, दूसरा हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि थायोगैलेक्टोसाइड को रिमूव करता है और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसीलिए लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों जीन्स की जरूरत है और इन तीनों जीन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स। बट अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल जीन एक ओपेरॉन में आप देख सकते हो दैट देयर इज एन ओ साइट जिसे कहते हैं ऑपरेटर एंड अ पी साइट जिसे कहते हैं प्रमोटर। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोटर साइट। तो जो प्रमोटर है इट इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ RNA polymerase. You can say that promoter is the initiation site. क्या है प्रमोटर? इनिशिएशन साइट, क्योंकि प्रमोटर ही वो साइट है जहां पे RNA पॉलीमरेज अटैच होगा और RNA पॉलीमरेज अटैच होगा तो ही वो RNA पॉलीमरेज आगे स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा। सो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स RNA पॉलीमरेज तो चाहिए ही और ये RNA पॉलीमरेज कहां पे अटैच होगा? प्रमोटर साइट पे अटैच होगा। पर बीच में आता है ऑपरेटर जीन, राइट? प्रमोटर के बाद क्या है? ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर का क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख रही हूं ऑपरेटर। ऑपरेटर इज द मेन जीन विच विल रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ mRNA ओवर द स्ट्रक्चरल जीन्स। इट इज द जीन दैट regulates mRNA synthesis over the structural genes, right? ऑपरेटर सबसे मेन जो है वो
सबसे मेन काम यहाँ पे किसका आ जाता है, ऑपरेटर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ऑपरेटर इतना इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये एक पूरा ओपेरॉन है, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला जीन है जीन आई, जिसे कहते हैं रेगुलेटरी जीन। क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन। ये रेगुलेटरी जीन कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब होता ही है, राइट, क्योंकि हमने 3 तरह के जीन्स पढ़े थे, इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल एंड कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव मतलब जिनका ट्रांसक्रिप्शन कभी भी स्टॉप होता नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, ट्रांसक्राइब होते ही रहते हैं, और इसके ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या बनाता है, ये एमआरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन से। तो ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो क्या है, रिप्रेसर। अब क्या होता है कि जब भी मीडियम में लैक्टोज नहीं है, जब भी मीडियम में लैक्टोज नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स के प्रोडक्ट की कोई भी जरूरत होती नहीं है, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं, तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मेटाबोलाइज को जरूरत नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए ये रिप्रेसर जो है वो जाके अटैच हो जाता है टू द ऑपरेटर। क्या करता है वो रिप्रेसर, एमआरएनए से जो रिप्रेसर बना है वो रिप्रेसर जाके अटैच हो जाता है टू द ऑपरेटर, और यहां पे बन जाता है ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। जब ये ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब आरएनए पॉलीमरेज के पी साइट, प्रमोटर साइट पे अटैच होने के बाद भी आरएनए पॉलीमरेज वुड नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। As it will not be able to move forward, transcription of the structural gene is not going to occur, right? So in this case what will happen, there will be no transcription of structural gene, and when there is no transcription of structural gene, there is no mRNA form, there is no protein form, और ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं। वापिस एक बार समझिए, ऑपरेटर साइट जो है वो मेजर रेगुलेटरी साइट है, पर वो क्यों रेगुलेट करता है सिंथेसिस को? तो यहाँ पे सबसे पहला जीन है रेगुलेटरी जीन, जिसका काम ही रेगुलेशन करना है। अब ये रेगुलेटरी जीन कंस्टिट्यूटिव जीन होता है, मतलब कॉन्स्टेंटली वो ट्रांसक्राइब होता ही रहता है। ट्रांसक्राइब होने पर उससे बनता है एमआरएनए और बनता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं रिप्रेसर। अब ये जो रिप्रेसर है वो जाके अटैच हो जाता है टू द ऑपरेटर। अगर वो ऑपरेटर को अटैच हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बीच में क्या बन चुका है, रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। As a result, transcription of structural genes does not occur. No transcription means no enzyme, and this happens in which condition? When lactose is absent in the medium, right? Lactose is absent. But as lactoperon is an inducible gene, ये on कब होगा? ये on तभी होगा जब मीडियम में लैक्टोज हो। This gene is going to turn on its expression only when lactose is present in the medium. मान लीजिए सेल के अंदर अब लैक्टोज है, राइट? उन्होंने कुछ भी खाया है और उससे लैक्टोज बना है और वो लैक्टोज उनके सेल में है, तो अब ये लैक्टोज प्रेजेंट होने पर कंडीशंस बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज टर्न ऑफ, राइट? यहाँ पे टर्न ऑफ हुआ। अब टर्न ऑन कैसे होता है? तो जब भी मीडियम में लैक्टोज हो तो लैक्टोज फंक्शंस एज एन इंड्यूसर। लैक्टोज फंक्शंस एज एन इंड्यूसर. Inducer is such a substance which goes and attaches to the repressor. Inducer is such a substance which goes and attaches to the repressor and forms
ऑपरेटर, क्योंकि रिप्रेसर तो बाइंड हो पाता था, पर अब कौन आ गया है, इंड्यूसर, जो उसे ऑपरेटर पे अटैच होने देगा नहीं। जब वो ऑपरेटर पे अटैच नहीं होने दे रहा तो क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर साइड पे है ही, एंड नाउ देयर इज नो हिंड्रेंस इन द पाथ, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, और ट्रांसक्रिप्शन करके उसे क्या मिलेगा, एमआरएनए फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए विल कंबाइन विद द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। एमआरएनए राइबोसोम से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन कौन से होंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। और बीटा गैलेक्टोसिडेज विल ब्रेक द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट। तो ये कंडीशन आप समझिए कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अकेला जब रिप्रेसर था तो वो जाके ऑपरेटर को बाइंड हो गया, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाता है, इसलिए जीन एक्सप्रेशन टर्न ऑफ। पर जीन एक्सप्रेशन को टर्न ऑन करना हो तो क्या चाहिए, मीडियम में चाहिए लैक्टोज, जो किसका काम करता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर, यहाँ पे इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है, पर इंड्यूसर का रोल क्या होता है, इंड्यूसर का रोल है टू गो एंड बाइंड टू द रिप्रेसर। क्या करता है इंड्यूसर, जाके रिप्रेसर को अटैच हो जाता है, सो दैट रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। जब ये ऑपरेटर साइड पे अटैच ही नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी स्टॉप्ड एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स विल occur, and that is how the protein synthesis is going to occur and lactose get metabolized. So tell me, till what time this mechanism is going to continue? Till medium has lactose. एक बार लैक्टोज खत्म हो जाएगा फिर वापस क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन विल टर्न ऑफ। Again when they have something, they have some food, carbohydrates आ रहे हैं, lactose आ रहे हैं, again the gene can be turned on. In this way, lactose को digest करने वाले जो enzymes हैं, उनका production lactose के presence में ही होगा, not in the absence of the lactose, right? तो यहाँ पे हम वही mention कर रहे हैं जो operator है, that will regulate mRNA synthesis over the structural genes. But operator, when repressor binds to operator तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, the transcription of structural gene stops. ये रिप्रेसर कहां पे आया, रिप्रेसर कम्स फ्रॉम द रेगुलेटरी जीन, ठीक है, वहां से रिप्रेसर आता है, और रिप्रेसर जब ऑपरेटर को बाइंड होता है तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन इंड्यूसर बाइंड्स टू repressor, repressor is no longer able to bind to the operator. जब मीडियम में इंड्यूसर हो तो इंड्यूसर जाके बाइंड हो जाता है रिप्रेसर को, इसलिए रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड कर सकता नहीं है, एंड देयरफॉर आरएनए पॉलीमरेज transcribes the structural gene, और स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करना मतलब क्या बनाना, एमआरएनए, जो राइबोसोम्स के साथ कंबाइन होके बनाएंगे प्रोटीन, और प्रोटीन बनेगा तब जाके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। तो यहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, प्रमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, व्हाट इज द रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन मतलब द जीन विच इज constitutively producing a repressor, right? हमेशा एक रिप्रेसर बनाते ही रहता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन that transcribe continuously to produce a repressor. Okay, so it is a gene which will be continuously transcribing to produce a
रिप्रेसर, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर जब रिप्रेसर को एक इंड्यूसर अटैच हो जाता है तो अब वो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा एंड देयरफॉर पॉलीमरेज जो है दैट विल कंटिन्यू द ट्रांसक्रिप्शन. So that is the whole concept of the lac operon.